میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میاں صاحب کے شعر پڑھے جاتے ہیں نا تو لوگ رونے لگ جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شعر سمجھ میں آتے ہیں، قرآن کی آیات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں کیا پتا، بلکہ ہم تو عذاب والی آیت پہ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ، وہاں عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سب سے نچلے طبقے میں گرائے گا دوزخ کے، تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، پتہ نہیں نہ چل رہا کیا ہو رہا۔ اور کچھ ہمیں شوق بڑا عجیب ڈال دیا گیا ہے، جو قاری صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ کہیں، ذرا زیادہ زور لگائیں، تاکہ کوئی خبر نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عذاب والی آیت پہ بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے بھئی، آپ عذاب پہ راضی ہو رہے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی جرت ہے۔ اگر ہمیں نماز کا ترجمہ یاد ہو، عبادت کرنے کا لطف اگر ہم لینا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ چلے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب کہتا ہے سورت فاتحہ میں نے اپنے بندے کے درمیان بانٹ لی ہے۔ جب میرا بندہ نماز پڑھنے عبادت کرنے کھڑا ہوتا ہے، سورت فاتحہ پڑھتا ہے، تو آدھی میری یا آدھی میرے بندے کی ہے۔ بڑا خوش نصیب نہیں جو اللہ کا پارٹنر بن جائے، جو اللہ کا بھائی وال بن جائے۔ اس سے مراد معاذ اللہ کو یہ نہ لے کہ اس سے مراد شرک ہے، میں اس معنوں میں بات کر رہا ہوں جس معنوں میں رسول پاک نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے بانٹ لیا ہم نے، یہ خدا کی رحمت کی بات ہے، اللہ کے فضل کی بات ہے۔ فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، فرمایا یہ بھی میری بات ہے، یہ بھی رب کا حصہ ہے، یہ خدا اپنی رحمت سے جو اس کی شان کے لائق ہے اس انداز میں بات ہو رہی۔ الرحمن الرحیم، یہ بھی خدا کی تعریف ہے۔ مالک یوم الدین، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ثنا ہے، اللہ کی حمد ہے۔ اور جب کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو ہی مجھے مدد فرما کے اس عبادت پہ استقامت دے گا۔ پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا جب یہاں سے شروع کرتا ہے تو اب بندے کا حصہ شروع ہو گیا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلے تو تب نہ کہ ہم نماز میں کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ اگر ہمیں خبر ہونی شروع ہو جائے کہ اس وقت کیا ہو رہا، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح عبادت کر تو اللہ کو دیکھ، ورنہ یہ تو ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تک ہم غور کر کے ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں اور ساری دکان کا حساب کر لیتے ہیں، وہ باتیں ساری جو کبھی یاد نہیں آتی، وہ ساری وجہ اس کی پر ترجمے کا نہیں پتا، ہمیں کیا خبر ہم کیا بول رہے ہیں، ہم نے تو جملے رٹے ہوئے طوطے کی طرح۔ جب تک ہم غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، اس وقت تک عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوتی تھی۔ آؤ دیکھو جنہیں عبادت کا ذائقہ تھا، جنہیں عبادت کی لذت تھی، وہ تو یوں تھا کہ جیسے خدا سے ہم کلام ہے، شیر خدا مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 تیر کندھے میں پیوست ہو گئے، جنگ کا موقع ہے، 2 تیر لگ گئے کندھے میں، طبیبوں کو بلایا گیا، کہا یہ تیر نکالنے، وہ کہنے لگے علی بڑی تکلیف ہوگی، یہ تو زمانہ نہیں تھا نا انجیکشن لگا لیا بے ہوش کر لیا، کچھ ایسے معاملات ہو گئے، کہا بڑی تکلیف ہوگی، ہم آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے۔ توجہ ہے آپ کی، جھانک رہے ہیں آپ، ایک ہماری نماز ہے اور ایک یہ نماز ہے، کہا علی آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے اچھی طرح، اس لیے کہ جب نکالیں گے آپ بہت تڑپیں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا، کہیں تیر جو ہے وہ اگر حرکت کر گیا تو آپ کے وجود کو نقصان دے گا، ہم نے سیدھا کھینچنا ہے، تو ہماری حکمت کہتی ہے کہ آپ کو درخت کے ساتھ باندھ لیں پھر تیر کھینچیں۔ شیر خدا کیا فرماتے ہیں، شیر کی بات بھی شیر جیسی ہے، کیا ارشاد ہے خوبصورت، فرمانے لگے باندھنے کی ضرورت نہیں، جب تم نے علاج کرنا ہوا مجھے بتا دینا، میں نماز کی نیت باندھ لوں گا، میں نماز کی نیت باندھ لوں گا، تم تیر کھینچتے رہنا، تم خون نکالتے رہنا، میں تو ہوں گا اپنے رب کے ساتھ، اس وقت میں جانوں میرا رب جانے، مجھے پتا بھی نہیں چلے گا۔ طبیب کہتے ہیں آئے، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں درجن آدمی، 12 آدمی آئے، جناب علی نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھ لی، کہتے ہم نے تیر کھینچے، جناب علی نے حرکت بھی نہیں فرمائی، جناب علی نے، یہ وہ لوگ ہیں جو عبادت میں ہیں، مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے،
दम सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़ नमाज दे, मैं तेरी बहार का फूल हूँ, मैं खिला भी हूँ तो तेरे लिए, मुझे मेरी शाख से तोड़ ले, मुझे अपनी जुल्फ का नाज दे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जनाब इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के करबला में बच जाने वाले साहिबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु घर में खड़े हैं, मुसल्ले पे खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, घर में आग लग गई, बच्चा करीब सोया है। जब आग का धुआं और शोले बाहर निकले, मोहल्ला इकट्ठा हो गया, कोई किसी बाल्टी में पानी ला रहा है, कोई किसी मटके में पानी ला रहा है, कोई किसी प्याले में पानी ला रहा है, आग बुझाते रहे, लोग शोर करते रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ते रहे, नमाज पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते नमाज फारिग हुए। लोग कहने लगे हुजूर आपके इर्द गिर्द शोर था, आपने तवज्जो नहीं की। फरमाने लगे क्या हुआ, मुझे तो खबर ही नहीं, तवज्जो है आपकी? हुजूर ने फरमाया जिसका दिल हाजिर नहीं उसकी कैसी नमाज है। हमारी तवज्जो ही नहीं, हमें खबर ही नहीं कहाँ खड़े हैं, हमें पता ही नहीं, हम बेज़ौक़ नमाज गए, भागे दौड़े, जल्दी जल्दी गए, सजदे में हम गए, लेकिन हमारी पेशानी को सजदे का सुरूर नहीं मिलता। फरमाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या हुआ? कहा हुजूर आग लग गई थी, बच्चा सो रहा था, घर जल रहा था, आपने तवज्जो ही नहीं की, हम आग बुझाते रहे, आप नमाज पढ़ते रहे। फरमाने लगे तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं जहन्नम की आग बुझा रहा था। तुम दुनिया की बुझा रहे थे, मैं जहन्नम की आग बुझा रहा था। जब कोई इबादत में लग जाए, एक वक्त लगता है, एक वक्त लगता है इबादत करते 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 एक वक्त है वो जो हदीस में हुजूर ने फरमाया ना कि खुदा की इबादत इस तरह कर कि तू अल्लाह को देख रहा है। ये सही बुखारी सही मुस्लिम की रवायत। या इतना तो ख्याल कर कि अल्लाह तुझे देख रहा है। हमारे सूफिया फरमाते हैं पहले ये प्रैक्टिस करो कि अल्लाह देख रहा है। जब ये बात जम जाएगी फिर एक वक्त आएगा कि तुम इस तरह हो जाओगे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तुम खुदा को देख रहे हो, ऐसा वक्त आएगा। हजरत जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर मैं तौबा करने आया हूँ। फरमाया किस बात की? कहने लगा मेरा एक गुलाम था, मैंने खरीदा, मुझे तौबा करा गया। वो शख्स बहुत शराब पीता था, बड़े बुरे काम करता, तौबा कर गया। फरमाया क्या हुआ? कहने लगे जी मैंने गुलाम खरीदा, और खरीद के जब मैं उसको लाया और ला करके जब मैंने कहा उससे, मैंने कहा कि भाई तू किस तरह मेरे साथ डीलिंग करता है, मैं तुझे मुलाजम रखता हूँ, कैसे काम करेगा? उसने कहा कि बस एक मेरी शर्त है, आप मुझे नमाज से मना नहीं करेंगे, दिन को काम बताएंगे, रात को नहीं बताएंगे। कहते हैं पांचों नमाजें पढ़ता, एक दिन रात को मेरी अचानक नजर पड़ी तो जमीन से आसमान तक नूर ही नूर है। कहते हैं मैंने आगे बढ़ के देखा तो मेरा गुलाम नमाज पढ़ रहा है। मैंने अपनी बीवी को बुलाया, दोनों गए, हमने कहा ये क्या है? उठा, कहने लगा एक जमाना था जब मैं रोशनी ढूंढा करता था, जब मैं नूर ढूंढता था, मेरी इबादत ने अब मुझे वो मकाम दिया है कि जहां मैं होता हूं नूर वहां पहुंच जाता है, रोशनी वहां आ जाती है। कहते हैं ये लफ्ज कहे और कहने लगा राज खुल गया है, अब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, वो तो इंतकाल कर गया, मुझे इबादत के तरीके बता गया। शेख शिबली कहते हैं एक बादशाह से मेरा इख्तलाफ हो गया, बादशाह ने मुझे शेर के पिंजरे में डाल दिया। कहाँ? कितना आसान है मेरे लिए बात करना और कितना मुश्किल है उस मौके पे सामना करना। शेर के पिंजरे में डाल दिया, तवज्जो है आपकी? फरमाते मैं पिंजरे में गया, शेर ने मेरी तरफ देखा तो मैंने अल्लाह अकबर कह के नीयत बांध ली। फरमाते मैं नमाज पढ़ने लगा, शेर मेरे पैर चाटने लगा। बादशाह मुझसे कहने लगा ये क्या है? मैंने कहा ये एक मकाम है, मैं खुदा की बारगाह में आया हूँ, और जो जिसकी बारगाह में आ जाए, जो जिसके घर आ जाए, वो उसकी पनाह में आ जाता है। जब से इबादत शुरू की है मैं अपने रब की पनाह में चला गया हूँ, अब कोई मखलूक मेरा कुछ बिगाड़ सकती? लो आखिरी बात सुनिए। हजरत सईद बिन आमर रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हम्स का गवर्नर बना दिया, आमिल बना दिया। हजरत उमर का तरीका ये था कि बाद में खबर भी रखते थे गवर्नरों की कारकर्दगी कैसी है। हजरत फारूक आजम पहुंचे, पता किया भाई क्या कारकर्दगी है, जाग रहे आप लोग?
कुछ सो रहे हैं बीच बीच में, कुछ जाग रहे हैं। मैंने कहा कुछ सो रहे हैं। अच्छा, जो जाग रहा है वो तो कहेगा ना मैं जाग रहा हूं, तो जो सो रहा है वो कैसे कहेगा कि मैं जाग रहा हूं? तो बहरहाल सो रहा है, वो कैसे कहेगा मैं जाग रहा हूं? अच्छा, काबिल तवज्जो बात, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कैसा गवर्नर है तुम्हारा, क्या ख्याल है तुम्हारा गवर्नर के बारे में? उन्होंने कहा जी हमारा गवर्नर बड़ा अच्छा है, पर 4 शिकायतें हैं हमें। कितनी? 4। फरमाया कौन सी? कहने लगे जी हजरत सईद बिन आमर का मामला ये है कि दिन को मुलाकात करते हैं, रात को किसी से मिलते नहीं। दूसरा मामला ये है कि पहले सुबह सुबह फजर में आ जाते थे लोगों की बात सुनने, अब दिन चढ़े बाहर निकलते हैं। तीसरी शिकायत यह है कि महीने में एक दिन ऐसा है कि मुलाकात करते ही नहीं। चौथी शिकायत यह है कि कभी कभी रोने लगते हैं और रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। हजरत उमर ने बुलाया, लोगों को भी बुला लिया, फरमाया सईद तेरी 4 शिकायत है। पहली शिकायत यह है कि तू दिन चढ़े आता है, सुबह सुबह क्यों नहीं आता? तवज्जो है आपकी? कल खवातीन के हवाले से बात हुई ना, तो जरा एक जुमला ये भी सुनिएगा। कहा तू दिन चढ़े आता है, बर वक्त क्यों नहीं आता? हजरत सईद बिन आमर गवर्नर है सूबे के, फरमाने लगे हुजूर आपने पूछ लिया है तो आप मेरे अमीर हैं, आपको बताना मेरे लिए जरूरी है। असल बात यह है कि मेरी बीवी बीमार है। उस भली औरत ने 30 साल मेरी खिदमत की है, अब वो बीमार हो गई है। मैं सुबह उठता हूं तो आटा गूंथता हूं, रोटियां पकाता हूं, बीवी के मुंह में लुकमा देता हूं, मैं घर में झाड़ पूछ करता हूं। उसने मेरी खिदमत की है 30 साल, अब उसे जरूरत पड़ी है तो मैं ये काम करते करते मुझे दिन का उजाला निकल आता है तो आता हूं। हजरत उमर खामोश हो गए। कहा अच्छा ये बतलाइए आप लोगों को दिन में मिलते हैं, रात को क्यों नहीं मिलते? तो कहने लगे उमर मैंने रसूल पाक से सुना है जो एक सजदा करेगा उसे खुदा का कुर्ब का एक दर्जा मिल जाएगा। मैंने दिन रखा हुआ है मखलूक के लिए और रात रखी हुई है अपने रब्बे करीम के लिए। फरमाया दिन को मखलूक की बातें सुनता हूँ, रात को खालिक की इबादत करता हूँ। हजरत उमर कहने लगे महीने में एक दिन आप मिलते ही नहीं, एक दिन आप मिलते ही नहीं महीने में। तो हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अर्ज किया ना बीवी बीमार है, महीने में एक दिन ऐसा रखा है कपड़े धोता हूँ, अपने भी, बच्चों के भी, बीवी के भी, मैं ये सारे काम करता हूँ महीने में। कहा अच्छा ये बतलाइए सुना है आप रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। हजरत सईद बिन आमर फिर रोए, तड़पे और कहने लगे उमर इबादत तो आज शुरू की है ना, जब पिछली जिंदगी के गुनाह याद आते हैं तो रोने लग जाता हूँ। जब पिछला दौर आंखों के आगे घूमता है, जब अपनी कोताहियां याद आती हैं, जब वो किए हुए जुर्म याद आते हैं, पता सारा है सरदार नु कीतियां दा एदा पर्दा छपाया ही भला उसी। कहा पिछले गुनाह जब याद आते हैं, खताएं याद आती हैं तो फिर सब्र नहीं रहता, जब्त नहीं रहता, रो पड़ता हूं। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा फरमाते हैं सहाबा का हाल ये था कि रात होती थी तो दुनिया से कट जाते थे, मुसल्लों को आबाद करते थे, इबादत करते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, इशराक पढ़ते थे, चाश पढ़ते थे, अव्वाबीन पढ़ते थे। दोस्तों मामूल बनाइए, 2 चीजों का मामूल बना लें। एक तो मगरिब की नमाज के साथ 2 नफल कम से कम ज्यादा पढ़ा करें। हुजूर ने फरमाया जो नमाज मगरिब के बाद 2 नफल पढ़ेगा 80,000 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। कितने पढ़ने हैं? रमजान शरीफ है ना, शहरी में उठना है ना, तो जो उठ के सवेरे तहज्जुद पढ़े, उठना तो है ना, तो आप उठे वुजू करें पहले तहज्जुद पढ़ें, कम से कम 2 रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा की हद नहीं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जब कोई बंदा तहज्जुद पढ़ने खड़ा होता है, फरमाया अल्लाह मुस्कुराता है उसे देख के जो अल्लाह की शान के लायक है। अल्लाह देख के मुस्कुरा, देखो मेरा बंदा बिस्तर छोड़ के तहज्जुद। कहा अगर वो नौजवान हो, जवान हो और फिर उठे और नफल की नियत बांधे तो अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है कि देखो जवान भी है फिर भी तहज्जुद के वक्त उठ के नमाज पढ़ रहा है। ये 2 काम करेंगे इंशाअल्लाह। मगरिब के बाद कम से कम 2 रखते हैं और सवेरे उठ के सहरी के वक्त कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितनी अल्लाह तौफीक अता फरमाए हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। आखिर दावा।